Every morning since July, 59-year-old Sham Narayan pins a small slip of paper to his shirt, declaring, "We are under protest." Despite not being paid for 4 months, he arrives at Delhi's Central Cottage Industry Emporium and starts his work. Since July, the employees haven't received their salaries, not even the security guard who watch over this place. Many of them are surviving by breaking their FDs just to make ends meet. Some have bank officials knocking on their doors demanding loan repayments. And yet, they continue to show up for work every single day, silently protesting with small banners pinned to their shirts that read, "I am under protest." No slogans, no strikes, just a quiet plea for dignity. Many sections inside now lie empty, as artisans have stopped sending their products after months of unpaid dues. The shelves that once celebrated India's craftsmanship now echo with silence of neglect. Once a proud symbol of India's rich craft heritage, the Emporium is now struggling to survive. Sales, which once reached crores, have plummeted to mere legs. Over 100 employees, including sales staff, managers, and support personnel, haven't been paid their salaries for months. Artisans have stopped supplying goods, and basic utilities like air conditioning have been switched off because of dues exceeding rupees 202 crore. Central Cottage Industries Emporium is a place that once showcased the very best of India's art, craft, and textile heritage under one roof. Established during the time of Indira Gandhi on the vision of pioneers like Pupul Jayakar, it became the government's curated window to India for visiting presidents, prime ministers, and dignitaries across the world. This was a mall before malls, a prestigious PSU that embodied the country's handmade tradition and cultural pride. Yet today, the Emporium's legacy is threatened by years of mismanagement and neglect. Employees are surviving on loans, holding on to their loyalty and hope. Payments have been irregular since COVID-19 pandemic, but things have only worsened with prolonged delays and unpaid dues. और मैं इस कॉटेज में तकरीबन 30 साल से काम कर रहा हूँ और हमारे जो सैलरीज़ है वो तकरीबन 4 महीने से पेंडिंग है अभी। और दिक्कत यहाँ पे है जब से कोविड था, कोविड के पीरियड में हमारी 12 महीने की पेंडिंग हो गई थी। उस वक़्त हमने बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा किया है और हमने अपने पीएफ से पैसा निकाला है तो जाके अपने घर चलाया है। तो उसके बाद जैसे-जैसे समय बीतता गया, कोविड के बाद 20, 22, 23 में तो हमारी सैलरी हमको लड़के लेना पड़ा। कभी 2 महीने के, कभी 3 महीने की, तो इस तरह से लिया है। तो अब समस्या ये आ गई है कि अब हमने वेंडर की पेमेंट नहीं करी। वेंडर जो हमको माल देते हैं, हम माल देते हैं, हम उसको बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकलता है, हम उसी से अपना कंपनी चलती है। लेकिन जब वेंडर को पेमेंट नहीं दी तो उन्होंने माल नहीं दिया, जब माल नहीं दिया तो सेल नहीं हो रही है। अब समस्या ये आ गई कि वेंडर हमें सामान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। जो 2-4 दे रहे हैं क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया तो कोई भी सामान नहीं देगा हमको। तो दिक्कत ये है कि हमारी सैलरी भी रुकी पड़ी है 4 महीने की। उसके अलावा 2020 से हमको जितने भी अलाउंसेस मिलते थे, चाहे वो कन्वेंस है या और भी अलाउंसेस मिलते हैं छोटे मोटे, वो भी रुक गए थे। अब इस साल से हमारा इंक्रीमेंट और हमारी प्रमोशंस और डीए सारा रुका हुआ है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमारे लिए बड़ी दिनचस्पी है कि हम आगे कैसे चलेगा, कॉटेज चलेगा नहीं चलेगा। तो हम मंत्रालय को बोल चुके हैं कई बार, हमने पीएम पोर्टल को भी लिख के रखा है और पीएम को भी लिख के दिया हुआ है, मंत्रालय को भी लिख के दिया है। अभी तक कोई सुनवाई कोई नहीं, सब हमको दिन तसल्ली, हाँ जी कर रहे हैं, देख रहे हैं, हो जाएगा। तो अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा ज़मीन हकीकत पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। Artisans like A. Ashok, who supply handcrafted silverware, have borne heavy losses. He told the print, "The weight is unbearable. The Emporium owes me nearly rupees 1.3 crore. Silver prices have soared, but I'm still supplying at old rates, bearing the losses just to keep the work going. I can't stop because 150 families in Karimnagar depend on this craft for their livelihood. I have to continue for them." मेरा नाम अजय सिंह, मैं सहायक प्रबंधक हूँ यहाँ पे। कंपनी के हालात बहुत बुरे हैं। कंपनी ने किसी भी वेंडर की पेमेंट नहीं हो पा रही है।
हम लोगों की सैलरी रुकी हुई है, लोगों के घर पे जिन्होंने लोन ले रखा है उनके यहाँ बैंक वालों ने वो चिपका दिए हैं नोटिस, और यहाँ तक कि ईएमआई जो देनी पड़ रही है कंपनी की सैलरी के हिसाब से लोगों ने अपनी लोन उठाए थे, जिसे चुकाने में लोग अब मर नहीं रहे हैं, बाकी तो सब कुछ हो रहा है। हमारी कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, एक हॉस्पिटल है वो भी कभी हमें एडमिशन देता है कभी नहीं देता। अगर किसी को कुछ हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, मेडिक्लेम हमारे यहाँ पॉलिसी है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब तक कोई नहीं मरेगा तब तक ये ध्यान नहीं देंगे और सरकार ध्यान नहीं देगी। और ये सिल्वर काउंटर पे सामान बहुत बिकता है, फिलगिरी का नेशनल अवार्डी का सामान है, और इतना बिकता है कि आते ही इसकी बुकिंग हो जाती है, फिर भी सामान नहीं है क्योंकि उसको पेमेंट नहीं हुआ है। काफ़ी पेमेंट ना होने की वजह से वो सामान नहीं देने में असमर्थ है। Despite repeated appeals to government ministries and leadership, employees have been met with silence. Security guards haven't been paid in months, medical benefits remain unmet, and retired staff await pending pensions. In its stellar years, every foreign delegations, every visiting head of state was brought here. Ministers, chief ministers, and embassy officials would walk dignitaries through its aisles. This building has hosted some of the most influential figures in global politics. It wasn't just a shopping complex, it was diplomacy through culture. Priyanka Gandhi's saris, dupattas, hand carved woodwork all came from here. Today, government officials acknowledge the severity of this crisis, proposing financial aid of around rupees 80 to 85 crore to revive the emporium. Leadership has assured that shutting down the institution is not an option, but the path to recovery remains uncertain. मेरा नाम आनंद सिंह नेगी, मैं यूनियन अध्यक्ष की पोस्ट में हूँ। मेरे को यहाँ 35 साल हो चुके हैं। मैडम, हमारे यहाँ दिक्कत 2019 से आ रही थी। पहले भी हमारी सैलरी लेट हो रही थी। जो सैलरी हमारी महीने की लास्ट में आती थी वो सैलरी हमको 15-15 दिन लेट हो रही थी। तो उसके बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के बाद हमारी सैलरी 12-12 महीने की पेंडिंग में रही। उसके बाद धीरे धीरे करते करते हमारी सैलरी 8 महीने में आई, जो अब 4.5 महीने में है। 4 महीने हमारी पेंडिंग है, और अफसरों की 6.5 महीने की पेंडिंग है, आउटसोर्स वालों की 3 महीने की पेंडिंग है। जिस वजह से हमारा सामान भी कम होते गया, ना हम वेंडरों की पेमेंट कर पा रहे थे, जिससे हमारे वेंडर भी सामान नहीं दे पा रहे थे यहाँ पे, जिससे हमारे कई काउंटर हैं जो खाली पड़े हैं आज की डेट में। जो कि इस टाइम हमारी सेल होनी थी 25 लाख 20 लाख के ऊपर जाती थी सेल, जो सेल आज हमारी 9 से भी नीचे आ रही है। सबसे मेन कारण हमारा है जो सामान नहीं होना, शोरूम में सामान की कमी होना, और वेंडर ने सामान नहीं मना कर रखा देने के लिए। ग्राउंड फ्लोर में एसी की प्रॉब्लम है, जो हमने एसटीसी को भी पेमेंट देनी चाहिए 20 करोड़ के आसपास। हमारे हॉस्पिटल जो थे सारे वो सब हट चुके हैं लगभग, उनकी पेमेंटें नहीं कर पा रहे हैं हॉस्पिटलों की। केमिस्टों की पेमेंटें नहीं हो रही, हमारी अलाउंसेज नहीं मिले, और जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं 2024 से उनको ग्रेजुएटी नहीं मिली और छुट्टियों का पैसा नहीं मिला। और अप्रैल 2022 से जो लोग रिटायर हुए हैं उनको भी छुट्टियों का पैसा नहीं दिया गया है। ग्रेजुएटी 2024 से बंद है लोगों की, जिसमें हमारे 30-35 बंदे जो रिटायर हुए हैं, उसमें हमारे एम्प्लॉइज़ भी हैं, हमारे अफसर लोग भी हैं, तो उनको भी पैसा नहीं दिया गया अभी तक। हमने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो हमारे मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनको भी कंप्लेन करी। जो हमारे सेक्रेटरी हैं इस टाइम, पिछले साल भी करी, इस साल भी करी हमने। हमारे जो सेक्रेटरी हैं टेक्सटाइल के मिस नीलम समी राव, उनको भी कंप्लेन करी है। हमारे अपने एमडी को भी हमने कंप्लेनें करी हैं। जो हमने प्रोटेस्ट किया है इसके हमने इनको पहले नोटिस भी दिया है, और उसके बाद हमारे जब चेयरमैन है उनको भी हमने कंप्लेनें करी, वहाँ से भी हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। Years of mismanagement and bureaucratic inertia have left the emporium on the brink. For employees, artisans, and countless families connected to the cottage emporium, hope is the only thread holding this legacy together.